Hello everyone. Let's start October-November 2023, variance 22. The duration of this paper is 1 hour 40 minutes and we need to cover all the questions. Okay, let's see what we have in this paper. Question number 1 is, the elements silicon, phosphorus and sulfur are in period 3 of the periodic table. Describe the variation in atomic radius from silicon to sulfur. अब ये silicon to sulfur जो है ये across the period है, right? Across the period, atomic radius always decreases. और एटॉमिक रेडियस इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. And nuclear charge increases, so this increases the nucleus to valence electron attraction and thus atomic radius decreases. Okay, now the next part is the melting point of silicon is 1410 degrees Celsius, whereas the melting point of sulfur is 113 degrees Celsius. So point is simple. Silicon has a giant structure with a strong covalent bonding so more energy is needed to break the bonds. Sulfur has a simple covalent structure with weak van der Waals forces so less energy is needed to overcome such forces. Next part. Table 1.1 shows properties of the element silicon to sulfur. The first ionization energy of phosphorus is not shown. अगर not shown है तो इसका मतलब ये हमें determine करने के लिए कहा जाएगा आगे चल के. Part 1, complete table 1.1 to show the total number of sulfur to show the total number of S and P electrons in an atom of silicon, phosphorus and sulfur. Okay, silicon का atomic number guys 14 होता है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 3s2 3p2 एंड ऑब्वियसली जो 3p है उसके 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो 3p की स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी. देन फिर हमारे पास है फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, then 3s2 and then 3p3
सो 3p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं और उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. देन वी हैव सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, then 3s2 and then 3p4. 1, 2, 3, 4. So how many electrons in S subshell? 2. Total number of electron in S subshell. Oh, total number of electrons, not in the valence shell. Total. So total का मतलब जो neon में भी है उसमें भी, तो ये 1s2 2s2 है और ये 3s2 है. तो 1s2 2s2 and 3s2 total 6 electrons हो जाएंगे. इसी तरह फॉस्फोरस में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरह सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, यानी तीनों में 1s2 भी होगा, तीनों में 2s2 भी होगा और तीनों में 3s2 भी है. सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तीनों में. ठीक है, और नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल. ओके, तीनों में आपके पास 2p6 भी है, इसमें 2p6 है और इसमें 3p2 है. 2p6 एंड 3p2, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. यहां पर देखिए, यहां पर 2p6 हो गया और 3p3 हो गया, तो यहाँ टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और यहाँ पर 2p6 हो गया और 3p4 हो गया, तो यहाँ टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ओके, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन. सो हमारे पास गैसियस न्यूट्रल सिलिकॉन एटम है. इट विल absorb energy and loses its one electron from its valence shell so that it will turn to gaseous monopositive ion, and this electron is lost. Okay, next, 3 possible values for the first ionization energy of phosphorus is given. Circle the correct value. Obviously across the period ionization energy increase होती है, तो 786 से ज्यादा होगी फॉस्फोरस की एनर्जी और सल्फर से भी ज्यादा होगी, यानी सिलिकॉन और सल्फर दोनों से ज्यादा होगी फॉस्फोरस की एनर्जी. So 160 would be the right answer, obviously. Oh, sorry, 1060. I mean 1060. Okay. Reason is across the period, nuclear charge increases. So this increases nucleus to valence electron attraction. As compared to silicon. Okay. Now the next point in this, कि सल्फर का तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है फॉस्फोरस से, फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो जाती है? बिकॉज सल्फर कंटेन
one paired electron in its 3p orbital. One paired electron in 3p subshell so it will experience inter-electronic repulsion, which is also called spin-spin repulsion, due to which electron removal is easier. Next is SiCl4 and PCl5 each react with water forming misty fumes. Identify the chemical responsible for the misty fumes. अब आपको equations याद होनी चाहिए and we have done these equations in the lecture. मैं remind करा देता हूँ दोबारा से. SiCl4 को जब हम water के साथ hydrolyze करते हैं because of the presence of vacant d orbital, तो ये convert हो जाता है SiOH taken 4 जिसके white precipitates होते हैं और यहाँ से misty fumes of HCl मिलता है. ठीक है. सिमिलरली जब आप PCl5 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में व्हिच इज H3PO4 एंड मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl में. तो जो मिस्टी फ्यूम्स हैं दोनों केसेस में वो HCl के आते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड. Now the next is predict the shape of the SCl2 molecule. Okay, SCl2 molecule के लिए हम क्या करते हैं, हम सल्फर लेते हैं, उसके साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच कर देते हैं. सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है which means it has 6 valence electron 1 2 3 4 5 6. Now we have 2 single bond and a 2 lone pair. Add them, you will get 4 lines draw करो. फर्स्ट वाली लाइन हमेशा s ऑर्बिटल की, रिमेनिंग लाइन p ऑर्बिटल की, so hybridization is sp3. So whenever you have 2 single bond and a 2 lone pair with sp3 hybridization, geometry is always band shape or non-linear shape with an angle of 104.5 degree. That's what we have done in the class. So हम यहाँ लिखेंगे non-linear or band shape geometry. So that's the end of question number 1. Let's start with question number 2. NO and NO2 react at 25 degrees Celsius to give N2O3 as shown in the equation. Okay, delta H की value is given and delta H की value is basically negative. That means reaction जो है वो exothermic है और exothermic इसलिए है क्योंकि bond formation हो रही है. The bond forming process is always exothermic. The reaction is reversible and reaches equilibrium in a closed system. By the way, ये condition होती है dynamic equilibrium को achieve करने की. Okay. Figure 2.1 shows how the rate of forward reaction changes with time. तो obviously rate of ये जो reactant की concentration है ये decrease हो रही है और फिर ये constant हो गई. Alright. So ये reactants हो गए आपके. So initially the rate of reverse reaction is 0. To complete the sketch to determine the rate of reverse reaction changes with time. तो देखिए जब आपके पास equilibrium होता है तो उस equilibrium पे rate of forward or rate of backward equal होता है. That indicates ये इस तरह से आएगा. तो ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड.
State how the position of equilibrium changes if at all when the reaction takes place at 100 degrees Celsius. Explain your answer. Assume the pressure remains constant. Okay. तो पहले जो रिएक्शन था वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था और अब टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है. तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं हमसे. तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ओके. If we increase the temperature in exothermic reaction, then it causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards left hand side. Okay, that is towards the reactant side. Next, part C. Table 2.1 shows the composition of an equilibrium mixture of NO and NO2 and N2O3 at 101 kilopascal. तो ये number of moles of equilibrium दिए में already. तो इसका मतलब और मुझसे कह रहे हैं calculate Kp of the equilibrium constant with respect to partial pressure. First of all, I need to find out the total moles. तो ये हो जाएगा 0.605 प्लस 0.605 प्लस 0.390. सो यहाँ से टोटल मोल्स आपके पास आ जाएंगे 1.60. नाउ I can find the partial pressure of each gas. तो मैं सबसे पहले partial pressure of NO कैलकुलेट करता हूँ. तो मेरे पास moles of NO है 0.605 over 1.65 into pressure. प्रेशर कितना गिवन है मेरे पास? प्रेशर मेरे पास गिवन है गाइस 101 किलोपास्कल. तो मैं इसको 101 किलोपास्कल से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा NO के लिए 38.19. सिमिलरली मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कैलकुलेट कर लेता हूं. सो मोल्स ऑफ NO2 0.605. टोटल मोल्स जो हैं वो 1.60 हैं इनटू प्रेशर 101 किलोपास्कल है. सो मेरे पास यहां से आंसर आ जाएगा 38.19. ठीक है. Similarly, I need to find out the partial pressure of N2O3. Moles है मेरे पास 0.390 divided by 1.6 moles into 101 kilopascal. So it's going to be 24.62. Okay, these are the partial pressures. And obviously ये भी kilopascal है, ये भी kilopascal है और ये भी kilopascal में होगा. Now I need to find out the Kp का expression. तो Kp का expression लिख लेते हैं हम सबसे पहले. That's partial pressure of product. और प्रोडक्ट में आपके पास N2O3 और क्योंकि N2O3 के सिर्फ 1 मोल है तो मैं पावर नहीं लगाऊंगा. ओवर partial pressure of NO times partial pressure of NO2.
मैंने ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लिए, ये है 24.62 डिवाइडेड बाय 38.19 मल्टीप्लाई बाय 38.19, तो इनको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0169. ओके, सो फाइनल आंसर है 0.0619. अच्छा, यूनिट्स देखने, आप जानते हैं कि ये किलोपास्कल है और आप जानते हैं कि ये किलोपास्कल का स्क्वायर है, तो जब ये यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1/किलोपास्कल आएगा। तो 1/किलोपास्कल को अगर आप यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा किलोपास्कल इनवर्स। Next, identify one natural process and one man-made process that causes the formation of atmospheric NO and NO2. Natural process जो है वो lightning, and man-made is internal combustion engine. Okay. Next, part E. NO2 is a brown gas that can be used to form nitric acid. NO2 is a free radical. Define free radical. A species having odd electron. Odd electron का मतलब one electron या more than one electron. Having one or more than one electron. NO2 has a catalytic role in the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. Write equations to show the catalytic role of NO2 in this oxidation. We have done this in nitrogen and sulfur का chapter. So NO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा इन द एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड में और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा NO में, विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। स्टेट वन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, आपने सल्फर डाइऑक्साइड बना ली ऑक्सीडेशन की वजह से, तो दिस सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच कॉजेस एसिड रेन। So formation of acid rain because sulfur dioxide reacts with water or moisture in the atmosphere. Okay. Part F. A student titrates nitric acid with a base to form a solution containing aqueous magnesium nitrate. Identify a base that the student could use, and that's very easy. अगर मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है तो आई नीड एल्कली, और एल्कली हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही होगी कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैग्नीशियम और नाइट्रेट दोनों मिलकर कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट में, विच हैज अ फार्मूला ऑफ MgNO3 टेकिंग टू दिस OH एंड दिस 2H, ये दोनों कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। ठीक है। The student evaporates the water to obtain magnesium nitrate solid. When this solid is heated, it decomposes. Write an equation for the decomposition of magnesium nitrate. When any group 2 metal nitrate is decomposed on heating, always metal oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas is given off. So ये हमारे पास है magnesium nitrate, हम इसको हीट कर रहे हैं, it is converting into MgO plus NO2 plus O2. आप चाहें तो इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। State how the thermal stability of group 2 nitrates changes down the group. Down the group thermal stability increases.
सिर्फ ट्रेंड पूछे तो ट्रेंड लिखेंगे, रीजन पूछे तो रीजन भी लिखेंगे. दैट्स द एंड ऑफ सेकंड क्वेश्चन, आई बिलीव. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. Phosphoric acid H3PO4 is used both in inorganic and organic reactions. H3PO4 is made in a two-step process from phosphorus. Phosphorus reacts with an excess of oxygen to form white solid. The white solid then reacts with water to form H3PO4. Write an equation for each step. तो phosphorus and oxygen का reaction है. Phosphorus हमेशा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ऑक्सीजन इज डायटोमिक और ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो ऑब्वियसली 5 लिखेंगे. और ये कन्वर्ट हो रहा है P4O10 में, विच इज योर व्हाइट सॉलिड. ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो P4O10 है उसको हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, ये कह रहे हैं, और फिर इस तरह से H3PO4 बनेगा. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 एंड ऑब्वियसली यहाँ पर 4 फॉस्फोरस हैं तो मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा. या 12 हाइड्रोजन हो गए तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा. ठीक है, so oxygen is balanced on both the side. H3PO4 is a weak Bronsted-Lowry acid. Define weak Bronsted-Lowry acid. Bronsted-Lowry acids are proton donor, and when we talk about weak, इसका मतलब proton donates slowly and gradually. So proton donor are Bronsted-Lowry acid, and weak का मतलब partially ionizes in aqueous medium. That's a very simple paper, by the way. H3PO4 is also formed in the process shown in reaction 1. ये reaction 1 है आपका. उन्होंने आपको वैल्यूज दी हुई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की. डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी. एंथैल्पी चेंज का when 1 mole of compound is formed from its elements and the constituent elements. In their standard states, under standard condition. Okay. Next, use the data in the table 2.1 to calculate the enthalpy change of reaction 1. So मैं इस equation को दोबारा से copy कर लेता हूँ. Where is that equation? इस equation को दोबारा से copy करते हैं. यहाँ लिखते हैं. जाहिर सी बात है, हमें फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, तो हैसेस और साइकिल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी. वी नीड फॉस्फोरस, वी नीड हाइड्रोजन, वी नीड ऑक्सीजन. H3PO3 H3PO3 की वैल्यू है -972. इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 मोल्स हैं.
H3PO4 की एनर्जी है हमारे पास -1281, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि यहाँ 3 मोल है। PH3 की हमारे पास है +9 किलो जूल, और हम सब जानते हैं कि हमें डेल्टा एच आर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाइए, ये दोनों वैल्यूज प्लस, ये दोनों वैल्यूज माइनस, इक्वल्स टू 0 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आर प्लस -972 टाइम्स 4 माइनस +9 माइनस 1281 times 3 equals to 0. Then we need to find out the value of delta HR. So delta HR, the value is basically +54 kilojoules per mole. Okay, unit is already given. Let me check my calculation again. That's basically -972 into 4 minus 9 plus 1281 times 3. Yes, that's +84. I'm right. Now the next is explain why reaction 1 is a disproportionation reaction. Explain your reasoning with reference to the relevant oxidation number. Okay, H3PO3 is converting into H3PO4 plus PH3. ये 4 ले लीजिए, ये 3 है, ठीक है, ऐसा ही है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, हाइड्रोजन +1 into 3, ऑक्सीजन -2 into 3 equals to 0. Then phosphorus की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2^6 + 3. Then H3PO4 में फॉस्फोरस लेते हैं, फॉस्फोरस को X लें, हाइड्रोजन इज +1 into 3, ऑक्सीजन इज -2 into 4 equals to 0. Then X equals to +5. Let's talk about in PH3. PH3 में फॉस्फोरस लेते हैं, फॉस्फोरस को X लें, हाइड्रोजन इज +1 into 3 equals to 0. Then X equals to -3. So इस इक्वेशन में दो प्रोसेस हुए हैं, एक है H3PO3 is converting into PH3, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से -3 हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि फॉस्फोरस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका फॉस्फोरस इज reduced during this reaction. Similarly, यही H3PO3 is converting into H3PO4. In that scenario, ये convert हो रहा है +3 से +5 में. That means increase in oxidation state हो रहा है, और increase in oxidation state का मतलब phosphorus in this scenario is oxidized, hence it is a disproportionation reaction. Okay. Part C, that's organic, my favorite again, shows the reaction scheme that involves H3PO
PO4 in several reactions. आप नोट करें ये एल्कीन है, ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। तो एल्कीन से अल्कोहल जब भी होता है उसको कहते हैं हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन हमेशा स्टीम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो ए है ये आपका स्टीम है, और ये जो H3PO4 है ये आपका कैटलिस्ट है। और आप नोट करें ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो गया कीटोन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप यूज करेंगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ओके, देन ये अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, एस्टर बन रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, कैटलिस्ट होगा, और ये स्टेरिफिकेशन है, एंड ऑब्वियसली इसमें आप हीट भी यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद है आपके पास अल्कोहल, और आप इसको KBr से रिएक्शन करवा रहे हैं H3PO4 की प्रेजेंस में। सो बी बन रहा है आपके पास। तो ये बेसिकली जैसे सोडियम ब्रोमाइड से हम रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे ये KBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली SN रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और इस बी में OH की जगह Br आ जाएगा, ये एज इट इज। ठीक है, आइडेंटिफाई A which reacts with propene in the presence of H3PO4. तो मैंने आपको पहले ही कह दिया स्टीम। ठीक है, आप चाहें तो आप H2O भी लिख सकते हैं इन गैस फॉर्म। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बी। बी का स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है, मैंने आपको बना के दे दिया। OH रिमूव होगा, उसकी जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि स्केलेटल स्ट्रक्चर है तो आंसर भी स्केलेटल में देना है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 3। तो रिएक्शन 3 में क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जिसको हम स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। बट हुआ ये है कि ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए, ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हुए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल इज कंडेंसेशन। तो स्टेरिफिकेशन भी कह सकते हो, कंडेंसेशन भी कह सकते हो, एंड आई बिलीव कंडेंसेशन कहना चाहिए बिकॉज स्टेरिफिकेशन आप ओ लेवल में कहते थे। ठीक है, next, reaction 3 is monitored using infrared spectroscopy. It is not possible to use OH absorption frequency to monitor the reaction. Use table 3.2 to identify the suitable bond whose absorption frequency can be used to monitor the progress of reaction 3. State the change you would see in the infrared spectrum during reaction 3. Okay, reaction 3 पे चलते हैं। अच्छा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये कन्वर्ट हुआ है एस्टर में। तो जब एस्टर में जाएंगे तो आपको कार्बोनाइल की पीक भी मिलेगी और सी सिंगल बॉन्ड ओ की भी पीक मिलेगी। और सी सिंगल बॉन्ड ओ की जो पीक है वो आप जानते हैं वो फिंगरप्रिंट रीजन में होती है, उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो बेहतर पीक होगी, स्ट्रॉन्ग पीक होगी, वो कार्बोनाइल की आएगी। ओके, सो आई बिलीव जो चेंजेस हैं वो कार्बोनाइल की होंगी। भाई एल्केन कार्बोनाइल की जो पीक है वो बेसिकली होती है 1670 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप बताएंगे एब्जॉर्प्शन, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, टू 1670 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके,
Next part D. That's a lengthy question, guys. H3PO4 can also react with alcohol to form organophosphate. Organophosphates are compounds similar to esters. They have the general structure shown. Okay. फॉस्फेट में एक फॉस्फोरस और 3 एटम होते हैं, ये बात याद रखने की है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। Next is complete the equation suggest the products of the reaction of H3PO4 with methanol और H3PO4 का रिएक्शन। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपको मिलेगा CH3O नेगेटिव और यहाँ से आपको मिलेगा PO4 माइनस, राइट। We have -1 charge here and we have 3 minus charge. So if we cross multiply the charges, we'll get this formula. So ये formula हम यहाँ लिख देते हैं equation balancing के लिए, CH3O taken 3 और ये हो जाएगा PO4, ओके। जाहिर सी बात है यहाँ से आपको 3 हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे और यहाँ से आपको 3 हाइड्रोक्साइड आयंस भी मिल रहे हैं। They will combine together to give 3H2O. I hope it makes sense to you. Okay. Compound T is a simple organophosphate. The mass spectrum of T shows a molecular ion peak is this. इसका मतलब ये आपका molecular mass है। क्योंकि एग्जामिनर ने molecular ion peak की बात की है और इस peak की intensity है 12.7. Similarly, the relative intensity of M+1 peak is this. ये भी important है। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिड्यूस करूंगा और वो क्वेश्चन में कर भी यही रहे। और फिर कह रहे हैं सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टी, assume that phosphorus and oxygen exist as single isotope, show your working. Okay, तो मैं सबसे पहली वर्किंग कर लेता हूँ n की। n equals to 100 over 1.1. abundance of M+1 peak is 0.84. abundance of molecular ion peak is 12.7. तो यहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गाइस मेरे पास आ जाएंगे 6. Okay, now we have 6 carbon atom. सेकेंड स्टेज में क्या होगा, हम सब जानते हैं कि हमारे पास फॉस्फेट भी होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये ग्रुप हमेशा होता है। तो PO4 का मास फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉस्फोरस का मास होता है 31, ऑक्सीजन का मास होता है 16 into 4. So 16 into 4 plus 31 is going to be 95. सही है। अब हम सब जानते हैं कि हमारे पास MR है 182, उसमें से हम 72 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने 6 कार्बन एटम लिए हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 182 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 110। उस 110 में से हम -95 कर देते हैं जो कि फॉस्फेट का है, तो हमारे पास बनेगा 10 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 6 हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास 6 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक फॉस्फोरस है हमारे पास और फिर 4 ऑक्सीजन भी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड बोथ कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स। अगर आप नोट करें, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिमिलरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कीटोन है। एक्सप्लेन why lactic acid exists as optical isomer, because lactic acid में ये chiral carbon है, this carbon is chiral carbon. So हम यहाँ लिख देते हैं कि lactic
acid contain chiral carbon. Next, give the systematic name of lactic acid. तो अगर मैं यहां से नंबरिंग कर दूं कार्बन एटम की 1 2 3, अब आप नोट करें इस सेकंड कार्बन के ऊपर OH है तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन का एसिड हो गया, 3 कार्बन के एसिड को कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। कंप्लीट फिगर पॉइंट 2 4.2 shows the formation of hydrogen bond between one molecule of lactic acid and one molecule of water. Okay. Label the hydrogen bonds. Show any relevant dipoles, lone pairs of electrons. All right. तो वाटर के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये रहा वाटर, और ये रहा ऑक्सीजन का लोन पेयर। डायपोल्स अप्लाई करते हैं, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, एंड बोथ द हाइड्रोजन्स आर आल्सो स्लाइड पॉजिटिव. अब electrostatic attraction between more electronegative element and hydrogen atom is hydrogen bond. Okay. ये भी हो सकता था कि अल्कोहल का OH वाटर की वाटर के ये जो अल्कोहल का OH वाटर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. ये भी तो हो सकता है ना कि ये स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव, और अब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, ये इसका लोन पेयर आ गया, ये इस पे स्लाइड नेगेटिव और दोनों के दोनों हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, आपने दोनों में से कोई एक लिख के देना है. ठीक है, बट 3 मार्क्स का है तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों बनाकर देने चाहिए. ठीक है, 3 मार्क्स का है इसलिए. नेक्स्ट बी पार्ट. माय गुडनेस. Two possible syntheses of pyruvic acid are shown in figure 4.3 and 4.4. Each synthesis has total number of 3 steps. Okay. ये जब ब्रोमीन से ऐड होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम में ब्रोमीन ऐड होगी, सेकंड स्टेप होगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, पायरुविक एसिड मिल रहा है. अच्छा, मुझे कीटोन मिला है यहाँ पर और मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है. तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं. तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगी. सही है. अब आप नोटिस करें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑब्वियसली इस कीटोन में कन्वर्ट होगा. ये प्राइमरी अल्कोहल है, ऑब्वियसली इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, और जब हम NaOH को यूज करते हैं तो हम साथ में हीट भी करते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन अल्काइल लाइट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. फिर है आपके पास एथेनॉल. ओह माय गुडनेस. एथेनॉल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट में, फिर वो प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में. सो मैं एथेनॉल को रिएक्शन करवाऊंगा HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड व्हिच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, सो आई विल गेट साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन की कंडीशन ये होती है, ये OH है, और ये CN हो गया. सही है. ये हमने यहाँ पर बनाया. अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे अंडर रिफ्लक्स. तो ऑब्वियसली ये जो CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में. उसके बाद ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कीटोन में, जबकि जो COH तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. दैट्स अ टेक्निकल एरिया.
by the way. Complete the diagram in figure 4.5 to show the mechanism for the reaction of propene with bromine. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. Okay, ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव, क्योंकि इंड्यूस डायपोल्स अपीयर हो जाते हैं पाई बॉन्ड की वजह से। ये पाई बॉन्ड इसके साथ रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम यहाँ से ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा। सो आपके पास प्रोटीन है, तो स्केलेटल स्ट्रक्चर में ही जवाब देना है हमें। CH3 CH2 CH2Br, ये आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो ये आ गया। ठीक, अब जो ब्रोमाइड आइंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, उन पे लोन पेयर दिखाइए। ये इस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगी आप। ठीक है जनाब। नेक्स्ट पार्ट, राइट एन इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड, थर्ड स्टेप इन दिस। सो मैं ऑक्सीजन एटम लेता हूं और ये कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, दैट इज CH3CO। आप जानते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ये COH ऑक्सीडाइज नहीं होगा, प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे वाटर। लेट्स चेक हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। देखें ये तो सेम है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई, तो इसकी तो बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। CH3 की भी बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, चेंजेस आ रही है इस ये कन्वर्ट हो रहा है CO में। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ बेसिकली यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है बेसिकली, क्योंकि यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं और ये कार्बन और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है कीटोन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, complete table 4.1 to give details of the reagents and conditions used in each of the two syntheses shown in figure 4.3 and 4.4. Reagents and conditions used. Okay. फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन है, सेकंड स्टेप के अंदर NaOH है, ये रिएक्शन RTP पे होता है, ये NaOH है, इसको आप हीट करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। तो हमने K1O4 लिया होगा या K2Cr2O7 लिया होगा। सो हम यहाँ पर ले सकते हैं K2Cr2O7। in the presence of acidic medium. Okay, synthesis from ethanol. अच्छा, यहाँ पर हमें हीट भी चाहिए, उसकी वजह ये कि प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए तो हीट नहीं चाहिए क्योंकि वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा कन्वेंटली, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल मोर देन 1 स्टेप ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट है, सो वी नीड हीट फॉर दिस कन्वर्जन। इथेनॉल में सबसे पहला रिएक्शन हो रहा है HCN के साथ, इसमें सोडियम साइनाइड कैटलिस्ट है और आप इसको हीट भी कर रहे हो। सही है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था? एसिड हाइड्रोलिसिस की थी अंडर रिफ्लक्स। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? इस सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया था, तो इसका मतलब K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो हम इसको लिख सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4, इसको भी लिख सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर।